वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। हम सभी को पता है कि एक लड़की भीगी भागी सी बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक सॉन्ग है एंड फॉर श्योर नॉट ओनली मी, कोई भी एक्ट्रेस होगी तो एक बहुत बड़े गर्व की बात होगी। हर कोई ये सॉन्ग वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। तो जब मेकर्स थॉट ऑफ हैविंग मी इन दिस सॉन्ग, इट वाज for me it was a big huge opportunity because for me not only for me, for everyone, Madhu Balaji is a beauty icon of India, beauty icon of Bollywood, and they were looking for looking for a face who could justify the Indian beauty of today's times. So I'm really happy because I'm stepping into Madhu Bala ma'am's shoes. Though she is not here, but I'm sure that she will be proud of our song, Ek Ladki Bhigi Bhagi Si. And it is a huge iconic song, and I never ever imagined that I'll be part of it. So I'm more than grateful, truly humble and forever grateful, and I really hope that you all guys love it. So yeah, it's a dream come true, I would say, and super duper happy about being part of this such a huge song of Madhu Balaji and Kishore Kumar. So I think it's in every actress's dream to be part of or to get into the shoes of Madhu Balaji. So I'm really grateful, and thanks to the entire team of our song Ek Ladki Bhigi Bhagi. So yeah, I'm truly grateful. Actually, this is also the first time जब मैंने गाने में अपने खुद के vocals भी दिए हैं। जब आप गाना सुनेंगे तब आपको पता लगेगा। और वैसे तो बेसिकली द गाना इज़ आर सॉन्ग इज़ वेरी मॉडर्नाइज्ड, बट उसमें हमने एक सीन रखा है जिसमें आई एम वेयरिंग द आइकॉनिक रेड साड़ी ऑफ मधुबाला जी। सो या आई मीन दैट बट इट्स अ वेरी मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ एक लड़की भीगी भागी सी। Something about the singer Ajay, how justified he has sung the song and आपको कितना पसंद आया उनकी आवाज़? It was absolutely fabulous working with him. He is truly a professional, artist, as an actor, as a singer, as a performer, and lots of good wishes to him. दुबई में शूट किया गया है, तो वहाँ पर कितना आपको लोकेशन इस तरह से enjoyed doing a video? We have given it very there's very deserty feel to it. We've shot it in desert, and then I mean beautiful direction by the entire team, Varun and Viral and Baki. The entire team was fab, so I'm really happy. Something about the projects क्या हो रहा है इसके अलावा नहीं? Apart from this, my next series, which is produced by GH Studios, is coming out, where I'm playing the leading role opposite Randeep Hooda, directed by Neeraj Pathak. It's an absolutely fantastic film, fantastic project. And then Black Rose is coming out, which is a bilingual film, Telugu and Hindi. And then Thiruttu Payalettu, which is a super hit Tamil film. The Hindi remake of that film is coming out. And then Black Rose is also coming out. So many multiple things are coming out. So yeah. जब मेरे पास ये गाना आया था वीर ने और पाकी मैम ने मुझे गाना दिया, डिस्कस किया डायरेक्ट करने के लिए, तो मैंने हमेशा सोचा था कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट करें और कुछ बहुत मैसिव सा करें। और वेरी लकी दैट किशोर जी's वॉइस इज़ देयर इन दिस सॉन्ग विद अस, और हम लोगों ने उसी तरीके से गाने को ट्रीट किया। हाँ, डेफिनेटली जिस तरीके का टाइटल है, बिकॉज हम लोग ओरिजिनल थॉट को नहीं टच करना चाहते थे, और जिस भी तरीके से ओरिजिनली गाना लेजेंडरी तरीके से हुआ है, हम लोगों ने इसको अपना टेक दिया। और क्रिएटिवली एज अ डायरेक्टर आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग वेरी डिफरेंट, और इसीलिए आप लोग देखेंगे कि रेगिस्तान में गाना शूट हुआ है, बहुत अलग सा वाइब है। और कल जब गाना रिलीज़ होगा तो आई एम श्योर आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग का इस गाने के लिए टेक क्या था। Something about like Urvashi Rautela and Ajay, like, and as you said, like the location is also grand scale में किया है. Something about the location. Urvashi is one of the fab actors, I think. I worked with, मैं शूट के टाइम पे उनको वन टेक आर्टिस्ट बोलता था, और वेरी पंक्चुअल, एंड जब वो सेट पे होती है तो एक अलग ऑरा होता है काम करने का। और जिस तरीके से हमने 2.5 days इस गाने को शूट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल शी कम्स विद अ वेरी नेचुरल ग्रेस, एंड शी इज समबडी हु पिक्स अप थिंग्स वेरी 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 स्मूथली। और
बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करती हैं. सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी अगेन, आफ्टर डूइंग 1000+ एड फिल्म्स, आई थिंक उर्वशी के साथ काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे उसके साथ बहुत काम करना है. जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग उस ओरिजिनलिटी को टच नहीं करना चाहते थे. हमारा पूरा आइडिया था कि आज के व्यूअर्स को आज की साउंड में कुछ क्रिएट करके देना, और विकी हार्दिक ने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रोड्यूस किया. और रिदम शाह, जो वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट इन अ कंट्री, इसको पूरा गिटार के साउंड पे हम लोगों ने फ्यूज़ किया है. और किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा ना करते हुए उस चीज़ की उस चीज़ की लेगेसी को बरकरार रखते हुए उस गाने को बनाया गया. एंड आई एम श्योर व्हेन व्यूअर विल लिसन टू इट, उनको अच्छा लगेगा. इट्स अ साउंड ऑफ टुडे. थैंक यू. मुझे लगता था लोग नहीं जानते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, बट इट्स अ गुड थिंग. थैंक यू. बच्चन साहब के साथ काम करना, आई थिंक जो भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं उनका एक एम्बिशन होता है, एक एम होता है बच्चन साहब के साथ काम करना. और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली. कोविड के टाइम पे मैं कुछ करना चाहता था. मैंने सर को फ़ोन किया, सर से बात की और सर से पूछा कि सर, दिस इज़ समथिंग विच यू वांट टू डू एंड आई वांट टू ब्रिंग इन 115 आर्टिस्ट टू डू समथिंग टुगेदर, जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ. और इन ओवर वन कॉल आई थिंक सर अग्रीड टू डू दिस एंड दैट हैपेंड. एंड आज भी वो जो गाना था, उस गाने का पूरा थॉट था अश्योरेंस देना, जो हम आज का टाइम और पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं. वही लोगों को बताना कि वक्त ही तो है, गुजर जाएगा. माना मौत चेहरा बदल के आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है, जिंदा रहने का ये मसला फिर असर लाएगा. मुश्किल बहुत है लेकिन वक्त ही तो है, गुजर जाएगा. सो इट हैपेंड. थैंक यू. As a music label, Beyond Music, me and Viral have always been very fond of music, and we thought that we should create something which will be known for years. This song has been so melodious in the minds of people for years. So I said, let's repeat the history and think about this song. So we thought of recreating the song. And how do you pick up lots of songs which are iconic actually? तो ये particular गाने पर हालांकि बहुत ही अच्छा है, एक लड़की का टाइटल. True. इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि गाने बहुत हैं. ये कोई कुछ तो आपने सोचा होगा कि ये गाना है. बेसिकली ये गाने जो गाए गए हैं वो किशोर दा का है. और मुझे लगता है कि किशोर दा के गाने में जो मेलोडी हमेशा रही है, लोगों के दिलों पे काफ़ी समय से राज किया है. एंड दिस इज़ वाई दैट वाज द फर्स्ट थॉट दैट वी शुड जस्ट how we had launched our first singer, we thought this would be the apt song to recreate for our singer Ajay Keswani. This will be a better launch pad. And Madhubala ji wale kirdar mein we could think of no one else but Urvashi, because she is apt image of Madhubala. Of course, there was an immense responsibility while we had this song in mind. Since this has created history and we want to recreate it, we thought a lot, and that is how we chose Vicky Hardik. Because Vicky Hardik के बारे में आप बता सकते हो ना? So basically, I have been working with Vicky Hardik. We did Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai, and we had all seamless thing. They have that knowledge of when you get that shoulder pressure that you are touching an iconic song. So they know how to enter the melody, not to change. बोलते ना कि not to do a remix, but not to cut it off, but create something crazy. ये एक्चुअली आप लोग के लिए अभी है कि भाई अभी 2 दिन पहले हुआ है कि भाई अभी लॉन्च हो रहा है. हमारे लिए तो बहुत टाइम से हो रहा है ये चीज़ें. तो ये पुराने सॉन्ग को रिक्रिएट करना लोगों के लिए होता है कि ईजी है, चलो हो जाता है. लेकिन जो रिक्रिएट एक्चुअली करता है उनको पता होता है कितनी उसके पीछे कितनी मेहनत होती है. क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि ऑलरेडी पहले से गाना हिट है और उसको हमें रिक्रिएट करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया, अच्छा नहीं लगा, तो लोग अच्छा नहीं बोलेंगे ना. तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है लोगों की कि उससे आइकॉनिक सॉन्ग. करेक्ट. एग्जैक्टली. हाँ, राइट. इवन हमने सोचा था कि इसमें कुछ ऐड भी करें, बट वो ऐड भी उसके लिए मतलब जैसे होता है ना, सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाती. फिर हमने बोला नहीं, एज इट इज़ रखो, वही हिट है. फिर वही हमने फिर आगे कंटिन्यू किया. जी करेक्ट. वो साउंड्स क्या होना चाहिए. करेक्ट. एग्जैक्टली. हाँ, वो एक तो क्योंकि है राइट, पुरानी ट्यून है, उसको मॉडर्नाइज कैसे करना है, सिंगिंग वाइज भी, अरेंजमेंट वाइज भी, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. Actually, Viral and Paki, they had come to Dubai and they met me.
तो वहाँ से हम लोग की मीटिंग हुई एंड देन एक्चुअली आई प्ले लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो आई प्ले 27 इंस्ट्रूमेंट्स सो दैट्स हाउ दे गॉट एन आइडिया कि दे वर रिक्रिएटिंग अ सॉन्ग सो तभी उनको आइडिया आया कि दे शॉर्टलिस्टेड मी एंड गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रिक्रिएट दिस सॉन्ग एंड विकी हार्दिक इज गिवन ग्रेट म्यूजिक इट्स अ वेरी हम्बल अटेम्प्ट हमने कोशिश करी है एंड आई रियली होप एंड प्रे पीपल लाइक इट वी आर वेरी नर्वस बिकॉज हमने आइकॉनिक ट्रैक को टच किया है बट हमने उसकी मेलेडी को बिल्कुल ज़्यादा नहीं वो किया वी हैव डन लिटिल बिट ऑफ चेंजेस सो दैट कि उसकी मेलेडी चेंज ना हो एट द सेम टाइम एक नया फ्रेश टेक मिले सो आई रियली होप एंड प्रे दैट पीपल लव द ट्रैक इसमें बहुत मेहनत गई है इस ट्रैक में Actually, to be honest, I was a little nervous initially, but she's a very good star. Basically, she makes the co-star feel very comfortable, and she's very hardworking. Basically, she works 24/7. So that even I had to push myself very hard to work with her. It was a very good experience working with Urvashi. How was it shooting like? Locations काफी अच्छी था वरुण ने बताया कि लगी या बिकॉज दुबई में शूट हुआ है लोकेशंस बीइंग ग्रैंड तो फुटेजेस आई हैं काफ़ी अच्छी आई हैं और वैसे होता ये है कि ऑप्शंस कम मिलते हैं कि कौन से एडिटर को यहाँ पे इतने ऑप्शंस थे फॉर द एडिटर दैट ही गॉट कंफ्यूज्ड कि ये लें कि वो लें और इसमें भी कुछ फुटेज छूट गई है बिकॉज इट्स अ 3-minute सॉन्ग जितना हम कोशिश कर सकते थे कर लिया है उसमें एंड देयर स्टिल सम फुटेज विच इज़ नॉट पुट इन दिस Manu has been very great director and he's really creative. He can improvise any situation anytime. When he goes on the sets, वहाँ पे देखने के बाद he can improvise any scene and he's really very good. I had such a lovely experience and good opportunity to work with Varun. You can enact this song really well because I'm a singer, so I can emote the feelings and all in a very comfortable way.